sentence. पर्टिकुलर तो नहीं पता ऐसा कुछ. Right, it is. Monica, there remains a three-way to paraphrase a sentence. And the first one is simple. That is, you can replace the words. Okay. Right? It is, you can replace the word. Like you can, for exercise, what you can take. क्या था ये? वो छोड़. देख 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 देख. थोड़ी बना दी कुछ. रबड़ की चूड़ी बना दी. अब ये नहीं हिलेगा. देख. चल दे दे के बस मैं हिलाऊंगी भी नहीं. ठीक है. ठीक. As you told that that we can replace the words, that is the first way to paraphrase. And for exercise, जैसे music वाला ले अगर हम, music is my hobby, है ना? तो music के लिए आपने बोल दिया songs, है ना? और hobby के लिए क्या यूज किया था? लेजर टाइम एक्टिविटी कुछ ऐसा. लेजर टाइम एक्टिविटी. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लिस है ना, listening song is my leisure time activity. That is a good paraphrasing. Second way to paraphrase is that jumble the sentence, jumble the words, है ना, आगे पीछे वर्ड्स करके सेंटेंस बना दो. जैसे कि my leisure time activity is to listen my favorite music, और म्यूजिक, है ना, वो हमने सेंटेंस पिछली तरफ से शुरू करके बना दिया. And the best way of paraphrasing is that you are replacing the words. You are also making it jumbling the words, and you are also giving little extra information or some extra words related to whatever the topic is. For example, music is my hobby. You will say that there is an activity, है ना, which I love to go in my leisure time, and that is listening my favorite pieces of songs, or that is listening music. अब एक छोटा सा जो सेंटेंस है, म्यूजिक इज माय हॉबी, जो कि 4 शब्दों का सेंटेंस था, वी हैव टेकन इट टू मोर देन 10 वर्ड्स. And that is the thing that is very important for speaking. And in writing, definitely we have to go with the complex sentences. So these sentences automatically get converted into complex one. आपसे स्पीकिंग में पूछा जा रहा है व्हाट इज योर हॉबी, आप बोल रहे हो कि मैम माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक. We will stay at 6. If you want that I should directly go to 7 or 7 plus, you will say that, ma'am, in leisure activity, I keep myself busy and I have great interest in music. So I listen my favorite pieces of music. एक छोटा सा सेंटेंस बोलने की बजाय आपने एक सेंटेंस की शुरुआत ही एक बहुत अच्छे लॉन्ग सेंटेंस से की. अब जैसे ये है कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, अगर हम सिंपल वर्ड्स को जंबल कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि वर्किंग आउट इज गुड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, is excellent for healthy lifestyle, but we need to make it more beautiful. Then we can say that the secret of good health lies in working out on daily basis. On daily basis little information हमारी तरफ से होगी, but that is related to the sentence. Got it? So we are going to, I'm going to give some small sentences. Let me see.
नहीं आए, but I think we can do. Many people prefer to live in cities. ओके, इसको बताऊं मैं? हाँ हाँ, आप करते जाओ और फिर मेरे ख्याल से ओरल कर लेते हैं। ओरल कर लेते हैं ये तो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। Many people prefer to live in cities. Nowadays, everyone everyone want to no, एक सेकेंड। सिटी। Nowadays there is a huge um, immigration is noticed in हाँ, इमिग्रेशन वर्ड यूज करना चाह रहे हो, अच्छा है। आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज जनरली ऑब्जर्व that a good number of people today like to migrate to urban areas. ओके। है ना, हमारी vocab भी ऑटोमेटिकली आ गई और हमने बोल दिया इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट मैनी पीपल को हमने बोल दिया कि गुड नंबर ऑफ पीपल प्रेफर की जगह हमने कर दिया कि लव टू माइग्रेट टू अर्बन सिटीज। है ना? Yes, right, it is. Try the second one. Student use the internet for study. स्टडी। You know एक जो सेंटेंस है ना, it is generally observed, it is generally noticed. ये सेंटेंस हमारे को एक इजी स्टार्टअप दे देता है, कहीं कहीं पे हम ये यूज करेंगे। It is generally observed. हम्म, People use people people prefer नहीं देखो, सबसे पहले तो वो देखा करो कि स्टूडेंट्स को मैंने लर्नर बोलना है, स्टडी को मैं एजुकेशन बोल सकती हूँ, यूज को मैं प्रैक्टिस बोल सकती हूँ, इंटरनेट को मैं इंटरनेट भी बोल सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बोल सकते हैं। है ना? फिर उसके बाद वो स्टार्ट कर दो कि इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट लर्नर्स मेक हाई यूज को हमने मेक हाई यूज ऑफ बोल दिया, मेक okay. हाई यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर देयर एजुकेशन। है ना? उन्हीं वर्ड्स का ही सिंपल सिंपल करते हुए भी हमारा बन गया। Okay. या फिर हम ऐसे इट इज, अब अगर मैं बोलूं कि लाइन भी उल्टी सीधी कर दो तो आप बोलोगे कि इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर इन हाई यूज एज अ स्टडी टूल अमंग द मॉडर्न लर्नर्स। है ना? ये भी अच्छा लग रहा है सेंटेंस कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर इन हाई यूज among the modern learners for their education. Exercise is good for health, we have already done. Next लेते हैं, some children may spend too much time on mobile phones. क्या था? चिल्ड्रन था ना वहां पे? हाँ, some children. चिल्ड्रन को हम यंगस्टर लिख सकते हैं, ठीक है। यंगस्टर ही ज्यादा फोन यूज करते हैं। तो मोबाइल फोन को तो सेल फोन वो भी लिख दिया, वो भी हाँ, चलेगा। टू too मच much टाइम। excessive time. हाँ, एक्सेसिव टाइम लिख सकते हैं। देखो क्या बना।
It is generally observed youngsters It spend is excess it is generally observed that youngsters spend excessive time of their life in the cell phone. it is generally observed that youngsters spend excessive time of their day, Of their day. Okay. excessive time of their day on digital media using cell phones, Digital media. है ना, यूजिंग। अब इस सेंटेंस को उल्टा सीधा करना हो तो कि एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन इज कॉमनली सीन अमंग द यंगस्टर्स दीज डेज, हम्म है ना। ये सेंटेंस हमने टिल्ट भी कर दिया और वर्ड्स वगैरह भी सब चेंज कर दिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। एजुकेशन हेल्प्स पीपल गेट बेटर जॉब्स। एजुकेशन गिव क्या था? एजुकेशन गिव आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, नहीं, पहले स्टार्टिंग के एक दो शो हुए थे, उसके बाद शो होने बंद हो गए। मैं फिर से पेस्ट करूं? हाँ एजुकेशन हेल्प्स पीपल गेट, हाँ हाँ, अभी आ रहा है। एजुकेशन हेल्प पीपल गेट बेटर जॉब। फिर से, आ रहा है मैम, आ रहा है है ना। शो। ये फर्स्ट हाँ, वन, एजुकेशन हेल्प्स पीपल गेट बेटर जॉब्स। जॉब्स। बेटर जॉब को हाई रैंक जॉब लिख सकते हैं। आप बोल सकते हो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके हाँ। Jobs. Job opportunities, office. People can get good job opportunities with the good quality of education. People can get good job opportunities if they are well Well qualified, educated. Okay, well qualified. है ना। Hmm. ये भी बिल्कुल वर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छा बन रहा है। और इम्पोर्टेंट थिंग इज द सेंटेंस इज बिकमिंग कंडीशनल। वी आर सेइंग दैट इफ दे आर एजुकेटेड, है ना। Okay. इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि एजुकेशन इज बिलीव टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन फेचिंग गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, Okay. है ना। एजुकेशन इज बिलीव टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल in fetching Good good job. job opportunities. Mm-hmm. Let's try the next one. Pollution causes serious environmental problems. जब आप बोलते हो ऐसा लगता है इजी है, जब मैं बनाती हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे सारे सारे स्टूडेंट मोनिका यही बोलते हैं कि मैम जब आप बताते हो ना तो ऐसे लगता है इंग्लिश बहुत कितनी इजी है। कितनी easy है, कितनी सुंदर है, और हम लोग कहाँ खो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ ऐसा लगता है कहाँ से आगे वर्ड, इसका कोई है ही नहीं, सिनोनिम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हम्म, तो दो चार दिन हम करेंगे ना, देखना ये वर्ड आपके लिए भी सब कॉमन हो जाएंगे और हम्म, राइटिंग स्पीकिंग दोनों ऑटोमेटिकली अच्छी हो हम्म, जाएगी। हम्म। प्रॉब्लम मतलब हम उसको लिख सकते हैं इफेक्टेड। हाँ, बोल सकते हैं।
पोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? पोल्यूशन तो पोल्यूशन को आप एक बहुत अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज डिटीरियोरेशन ऑफ बायोस्फीयर। अगर एनवायरमेंट वर्ड नहीं होता तो हमने बोलना था डिटीरियोरेटिंग एनवायरमेंट। ओके। With the advancement of technology, life become ये very easy. कंफर्टेबल, But लाइफ yes, बिकम्स कंफर्टेबल। हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक है, आप इसको लॉन्ग करना हो तो अवर लाइफ इज कंफर्टेबल टुडे एंड द क्रेडिट गोज टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी बोले है ना, and हम्म credit goes to the modern technology. हम्म Modern life is excessively comfortable. हम्म It is the result of technological advancement. हम्म या फिर technological advancement has made human life very comfortable and easy. Many people like watching television in their free time. Television is the popular leisure time activity among good number of people. हाँ बिल्कुल अच्छा है। Watching television Leisure time activity. is a leisure time activity with the most of the individuals in the society today. थोड़े से दो वर्ड और चेंज हो गए। हम्म या फिर the most common leisure time activity that is commonly found among most of the people in the society is their screen time to television, है ना, screen time to television। ये मुझे लगता है मोनिका अभी 2 मिनट में ऑफ हो जाएगा, एक बारी फिर से ऑन होंगे और फिर ओके। ये 40 मिनट का सेशन रहता है ना, फिर ऑन होके फिर होमवर्क वगैरह डिस्कस करेंगे। और ओके। उसके बाद क्या है हमारा ये कि Public transport reduces traffic problem. हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस ट्रैफिक Traffic. प्रॉब्लम्स। कंडीशनल करके बना दो ओके। कि अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, वैसे करके बना दो। अगर हम कंडीशनल बनाते हैं तो भी वो लॉन्ग सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, वी आर हैविंग 10 मिनट्स। ट्रैफिक तो ट्रैफिक ही रहेगा ना। ट्रैफिक तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक ही रहेगा। ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल्ड बट बिल्कुल, फिर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कैन बी कंट्रोल्ड if people prefer to travel in the buses or the other public transports or by using carpooling नहीं, फिर वो ज्यादा आगे vehicle चले, इतना ही काफी है कि इट इज सुजेस्टेड, इसके आगे हम लगा सकते हैं इट इज सुजेस्टेड दैट ट्रैफिक problems like traffic congestion and traffic jams can be mitigated to a great extent। reduce वाले पॉइंट को भी हमने इलेबोरेट कर दिया, mitigated to a great extent if people prefer public transports like buses and trams, metros for their daily commuting। बहुत अच्छा बनेगा।
फॉर Okay. देयर डेली कम्यूटिंग लगा दिया, उससे और भी अच्छा बन जाएगा, हम्म है ना। हम्म इट इज बहुत लंबा सेंटेंस बना, देखो हमारा हमारा हम्म पूरा सेंटेंस बना। इट इज सजेस्टेड दैट ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक हैजर्ड्स भी बोल सकते हैं, लाइक ट्रैफिक कंजेशन एंड ट्रैफिक जैम्स कैन बी मिटिगेटेड to a great extent, can be mitigated to a great extent if people use public transportation like metros and trams, buses for their हम्म daily commuting. हम्म ऐसे अगर हमने 4-5 सेंटेंसेस हर पैराग्राफ में, मतलब हर एक का स्टार्ट में दे दिया, कुछ हम्म कर दिया, हमारे नंबर वहीं पे 7 बैंड बन जाएंगे। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने थोड़ा सा लिखना है, पर हमने जो 3-4 सेंटेंसेस लिखने हैं वो हमारे क्वालिटी सेंटेंसेस हों। One हम्म more sentence is there. Reading books improves knowledge. we uh, we can get improved ourselves with the knowledge by reading books. By reading books को कुछ और बोल सकते हैं? By giving time to book, by giving good amount of time in turning the pages of a book. और भी इजी और अच्छा ऐसे कि books are believed to be the storehouse of knowledge, हम्म है ना। Books are believed to be the storehouse of knowledge, and it uh, and reading them surely improves our understanding, knowledge and information, हम्म है ना। 3 वर्ड साथ में और हो जाएंगे। Reading हम्म them improves our understanding, understanding, knowledge knowledge and and information। invention. Yes. तो अब ये तो हो गया पैराफ्रेजिंग, है ना। अब हम्म हमने बोला था कि पैराफ्रेजिंग जो है वो जरूरी है एक हम्म राइटिंग के लिए, और एक जो है क्या बोलते हैं हमारा राइटिंग टास्क 2 के लिए। हम्म जब भी हमने कोई क्वेश्चन, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, उसके बेसिस पे मैं अभी क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप करती हूँ। ओके एक लेटर करूंगी, लेटर अपने ढंग से करना, और हम्म 2 क्वेश्चन सेंड करूंगी टास्क 2 के। वो ओके अभी जैसे हम डिस्कस, ये 2 मिनट है, हम करते हैं डिस्कस। ओके और एक एक मैंने चीज नहीं तो मैं देखती हूँ, इसको डिलीट करेंगे, एक और अच्छी सी जौन सी है उसको नहीं, रिकॉर्ड ये कर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ हाँ, मैं देखो अगर हो सकता हुआ सेंड, तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, ऐसे होना चाहिए। हाँ, ये टेक्नोलॉजी ना बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, और नहीं खास करके अमन, वो क्या बोलते हैं मोनिका, जब हम अपना स्पीकिंग वाला करेंगे ना, तो वो हम्म तो जरूर रिकॉर्ड करना सेशन, क्योंकि हम्म उसमें फिर वो मेरे आइडियाज वो है, आप बार बार भी सुन सकते हो, एक बारी भी हम्म और सुन लोगे तो वो स्टे करेंगे माइंड में। ऐसा हम्म करते हैं कि ऑफ जाके एक बारी फिर से ऑन आते हैं, ओके और